Hello students, how are you? On 26th of July, for 26th of July, the trend decider for Nifty was 15,806 and 15,827, and there were the support and resistance which were being given. Let's look at the chart. I have made and formed a different compartments for every week. All right, let's find out 26th of July. And for the 26th of July, this is the box, and here what the trend decider is, 15,825. So I have marked this trend deciding line. I have formed that. Now as the price dropped below, there was a one single hourly candle where the price dropped by almost 200-300 points. Dropped by 200-300 points. Look at what the support levels are. 15,602 is the support 2 and 15,471 is the support 3. 15,602 वहाँ पर पॉसिबिलिटी है हमारी कि दोबारा ट्रेंड डिसाइडर वी कैन मेक एट 15,602 ये लाइन भी मार्क कर दी. आप देखें थर्ड सपोर्ट लेवल अचीव हुआ या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं. 15,471 इट इज बीन अचीव्ड और नॉट. लेट्स फाइंड इट आउट. 15,471 it was not been achieved. The low was somewhere near to 15,500. 15,500 का बॉटम बनाया. 15,471 का रेट नहीं लगा. और लेकिन R2 is S2 and R2 are the trend decider. As the price moved above the S2 के ऊपर जैसे ही निकला, it approached the trend decider again. दो वेव फ्रॉम 15,825 to 15,602 and 15,602 to 15,825, almost the move of 400 points. और उसके बाद दोबारा when it dropped below this range, then it dropped to 720-30, somewhere near to it, then even the 100 points more. So there was a successful week from 26th July onwards. उसके बाद जो now the next week is starting from August 2 में, here it is. Trend decider is 15,738 and 15,741. Let's move on the chart and find out how it worked. From 2nd of August, let's place the trend decider 15,738. वो वहाँ तक नहीं आया और वहाँ से उसने रैली करना शुरू कर दिया. और जो हमारा रेजिस्टेंस 3 है, दैट वाज 16,189. 189 का प्राइस बहुत आसानी से अचीव हो गया और वो फिर बेस बन गया. अगले हफ्ते में भी जो प्राइस है उसने 2 बार इस प्राइस को टेस्ट किया, वहां से सपोर्ट ली और वहां से उसने दोनों बार रैली की. दैट वर्कड लाइक ए रॉक इन द coming week also, on the next week also. This is the second time and this is the third time. उसके बाद then the one message was being dropped. Now the trend deciding zone will be, let's find it out. Okay, here it is. 15,500, which was resistance earlier, is now working as a good support. Multiple time the price bounced from the mentioned point of 15,500. Now 16,257 and 16,321. That's 16,321, which will work as a perfect trend deciding range. और आप देखें, I am just going to draw that 16,321 and 16,257. आप देखिए इस प्राइस रेंज के आसपास कितना मार्केट ने स्पिन आउट किया. इसी रेंज के अंदर
अगर मैं काउंट करूं तो शायद कम से कम 20-25 ऐसी कैंडल्स होंगी जो इसी बैंड को ऑलवेज टच किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और यहाँ पे 3 कैंडल छोड़ के 4 कैंडल और 39 कैंडल्स ने इस प्राइस के आसपास ही स्पिन किया। केवल 3 कैंडल्स ऐसी हैं जो उसके नीचे बिना टच किए हुए फॉर्म की और वहां से जब ब्रेकआउट हुआ ऊपर को, देन इट मूव्ड अप इन ए बिग वे। Now let's see for the next week. Now this next week starting from August 9 to 13, then weekly level which is 16,175 and 16,200. It worked like a rock in this week. ये प्राइस के ऊपर प्राइस ने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे ऑन मंडे इट टच्ड, let's place that first 16,200 and 16,175. that was stop loss was of only 25 points. इसका कलर चेंज कर देते हैं. now there are the multiple lines over there. ये this is a trend deciding line for week starting from August 9th और दोनों लाइन ब्लू लाइन, these are the trend deciding range. तो तीन बार प्राइस हैज कम ऑन दिस ट्रेंड डिसाइडर एंड मूव्ड अप शार्पली. पहली बार टच किया, देन इट मूव टू 360 और सो, लगभग 120-150 पॉइंट ऊपर गया, नीचे गिरा, दोबारा ये 100-150 पॉइंट ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे गया और वहां से तो इसने रैली एस्टेब्लिश कर दी. और रैली एस्टेब्लिश करने के बाद देन इट मूव टू जो हमारा फाइनल टारगेट है उसको एक बार चेक कर लेते हैं. व्हाट इज द फाइनल टारगेट? दैट इज R2 is 16,541. R2 is 16,541, which is a trend decider again. 16,541 और यहाँ पर that was the top of the week और वहाँ पर यहाँ से रैली शुरू की ट्रेंड डिसाइडर से और जो टॉप फॉर्म किया डॉट ऑन R2, that was dot on R2. It worked like a rock. Most of the weeks आप सौदा अगर पकड़ नहीं भी पाए हैं तो कम से कम उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं बैठे हुए. देन दैट वाज ए बिग रिटर्न फ्रॉम 16,175 टू 16,541 और उससे पहले दो स्विंग भी दिए. फिर उसके बाद देन इट कंप्लीटेड द जर्नी ऑन द रेजिस्टेंस 2. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वीक. दिस वीक द करंट वीक जो अभी चल रहा है, आज हॉलीडे है तो आई गॉट द चांस टू प्रिपेयर ए फीडबैक वीडियो ऑन इट. दिस इज ओके, हियर इट इज 16,447 से 16,480, दैट इज द ट्रेंड डिसाइडर. 16,447 and 16,480. okay, let's place that. this is for 16,447 and 16,480. let's place the 16,480 also. on the first day, on the first candle it touched the 16,480 और बिल्कुल उसके नीचे एक बार भी नहीं गया. अभी आप देखें जितने भी ट्रेंड डिसाइडर थे किसी ने भी स्टॉप लॉस नहीं दिया. शायद एक स्टॉप लॉस हुआ होगा, वो भी 1-2 पॉइंट से, बट यहाँ से फिर दोबारा प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट की और हमारे पास रेजिस्टेंस 1 है 16,669.90 और उसको उसने सक्सेसफुली अचीव किया. Here this is the resistance 16,669. Here it was being achieved. At this point of time नए ट्रेंड डिसाइडर भी दिए गए and that was, और फिर वहाँ से वापस it has ड्रॉप टू जो पिछले हफ्ते का टॉप था वहाँ तक ये दोबारा इसने टच किया. दिस वीक पुराने वीक के टॉप और बॉटम, दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन सम एक्सटेंट, तो वही वहाँ पर ही इसने बॉटम फॉर्म किया. और ये जो दोबारा ट्रेंड डिसाइडर दिए गए 16,683 से 16,677, दैट वॉक्ड लाइक अ रॉक और प्राइस ने वहीं तक
वहाँ से जैसे ही 677 से नीचे गिरा, उसके बाद देन इट स्लाइड बाय 150 प्लस पॉइंट्स। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए इट वाज ए सक्सेसफुल जर्नी। इवन ऑन later on blog also I posted that 16,683 से 16,677 is a trend decider now. From there the sport one was somewhere near to 16,534 जो सेम डे अचीव हुआ। और जो हमारे वीकली लेवल्स हैं इस हफ्ते के, उसके स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2, स्पोर्ट 3 तीनों अभी वैलिड हैं। एक ही दिन ट्रेडिंग का बचा है, दैट इज 16,258, 16,130 एंड 15,925। दीज आर स्टिल वैलिड फॉर टुमारो। और एक बात मैंने इसी वीडियो में कहा, 15,575, दिस इज 15,575 इज एन इंपॉर्टेंट अरोरा लेवल विच वी शुड वॉच अबाउट इट। अगर ये इसके ऊपर चलता है तो प्राइस के अंदर नई स्ट्रेंथ आ सकती है, बट इसके नीचे अगर प्राइस रहता है तो देन अभी नीचे जो इससे पहले जो नीचे बॉटम से जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी वहाँ से 1906 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। और अब अगली अगर जर्नी शुरू होनी है तो फॉर 2000 पॉइंट्स तो वन हैव टू बी सम माइल्ड करेक्शन एट लीस्ट शुड बी देयर। तो 16,575 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके ऊपर प्राइस होल्ड करता है तो देन वी कैन सी ए न्यू वेव, बट उसके नीचे 371 और 371 के अगर नीचे चलता है तो फिर कुछ एक बड़ा करेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। बट हम कोई भी बुल या बियर अपने माइंड में नहीं रखते हैं। विल गो बाय द लेवल्स विल tell us to buy, we will buy, levels will tell us to sell, we will sell, we will go by the levels only। तो इस हफ्ते में जो मेरे को कुछ करेक्शन की उम्मीद थी वो इट इज़ ओनली डिलेड बाय ए डे और सो। वहाँ से एक मूव जो उसने 575 के ऊपर दिया, दैट वाज फॉर few hours, 2 hours or 3 hours only, and from there it come back below the 575 level. Then still this 16,575 is an important level. Okay, with this, lots of love and blessings to all my students. Happy trading and happy investing to all my students. Good luck, goodbye, enjoy the holiday.